अब हम अपनी दूसरी किताब पे चलते हैं। अनु सोच रही होगी अभी तक शुरू नहीं किया, मैं कितना पढ़ पाऊंगी। नो मैम। देखो, स्माइल ले आई ना मैं सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे मैम, पे। you always get that smile on my face. हाँ, यू डू एक्चुअली। हाँ जी, सो वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश न्यू चैप्टर, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। हाँ जी। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Uh, Chapter 6, Practical Techniques in Mental Healings. An engineer has a technique and a process for building a bridge or an engine. Like the engineer, your mind also has a technique for governing, controlling, and directing your life. You must realize that methods and techniques are primary. In building the Golden Gate Bridge, the chief engineer understood mathematical principles, stresses, and strains. Secondly, he had a picture of the ideal bridge across the bay. The third step was his application of tried and proven methods by which the principles were implemented until the bridge took form and we drive on it. There also are techniques and methods by which your prayers are answered. If your prayer is answered, there is a way in which it is answered. And this is a scientific way. Nothing happens by chance. This is a world of law and order. In this chapter, you will find practical techniques for the unfolding and nurture of your spiritual life. Your prayers must not remain up in the air like a balloon. They must go somewhere and accomplish something in your life. When we come to analyze prayer, we discover there are many different approaches and methods. We will not consider in this book the formal ritual prayers used in religious services. These have important place in group worship. We are immediately concerned with the methods of personal prayer as it is applied in your daily life and as it is used to help others. Prayer is the formulation of an idea concerning something we wish to accomplish. Prayer is the soul's sincere desire. Your desire is your prayer. It comes out of your deepest needs and it reveals the things you want in life. Blessed are they that hunger and thirst after rightness, for they shall be filled. This is really prayer. The, the hunger and the first, that is really prayer. Life's hunger and thirst for peace, harmony, health, joy, and all the other blessings of life. या तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था जिसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रेयर थेरेपी का नाम उन्होंने हर चैप्टर में बोला है ना, प्रेयर थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है जो किसी चीज को ठीक करने के लिए यूज होता है। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी जिंदगी में हम सबको एक कॉमन फैक्टर है जो हमको चाहिए, पीस, हार्मनी, हेल्थ, जॉय। और जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, मटेरियल थिंग्स की ब्लेसिंग्स हैं या जो भी चीज आपको चाहिए है ना, हो सकता है आपके ट्रैवल गोल्स हैं, तो वो सारी भी तो आपको जॉय लेके आएंगी। सो पीस, हार्मनी, हेल्थ, जॉय और जो हमारी सारे डिजायर्स है, सब कुछ है, तो वो हमारी प्रेयर्स होती हैं। तो वो जैसे बताते हैं, जैसे हर इंजीनियर का एक तरीका होता है ना। जैसे मैं अपने बेटे को देखती हूँ कि जब भी वो बहुत हॉस्पिटल्स बनाता है वो, तो वो जब भी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करता है तो उसकी ब्लूप्रिंट होती है, फिर वो घर आके दिखाएगा कि दिस इज हाउ आई मेड इट, एंड ये मैंने इस तरह से इतना बड़ा ये दिखाया है और बहुत सुंदर बनाया है, देखो फसाड कितना सुंदर है। तो वो सारा उसके लैपटॉप पे पहले बना हुआ होता है।
उसके बाद देन ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, जब सब कुछ इन प्लेस हो जाता है। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। वैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं दैट प्रोसेस बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज में विक्ट्री अचीव करने की। जैसे अगर हम खाना भी बनाते हैं, है ना, अगर आप कोई भी आप एग करी बना रहे हो, तो एग करी का एक प्रोसेस होता है ना बनाने का, कि पहले आपने ऑयल डाला पैन में, उसके बाद वॉट एवर आपने जीरा या कुछ डाला, उसके बाद आपने अनियन का पेस्ट डाला, थोड़ा थिकनेस हो तो बेटर होता है उसमें। फिर उसको अच्छे से ब्राउन गोल्डन ब्राउन किया, जो भी आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, फिर उसमें से कुछ मसाले डलते हैं, द ड्राई मसालाज एंड द होल मसालाज, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि पहले आपने अंडे डाल दिए पैन में और उसके बाद आप फ्राई कर रहे हो अनियन को, ऐसा नहीं होता, है ना। सेम थिंग आप भिंडी की सब्जी बना रहे हो, सो यू हैव टू हीट अप द ऑयल फर्स्ट, और उसमें फिर जीरा का क्रैकलिंग होना चाहिए, फिर उसमें आप अनियन डालोगे या जो भी, फिर आप भिंडी जो चॉप्ड है वो डालोगे, फिर उसके बाद उसमें मसाले डालते हैं। तो हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है करने का। तो वही कह रहे हैं कि प्रेयर थेरेपी अगर आपको अचीव करनी है 100%, तो आप उसको तरीके से करो। अब वो तरीका हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में समझा रहे हैं। हाँ जी अनु। The passing over technique for impregnating the subconscious. This consists essentially in inducing the subconscious mind to take over your request as handed it by the conscious mind. This passing over is best accomplished in the reverie like state. Know that in your deeper mind are infinite intelligence and infinite power. Just calmly think over what you want. See it coming into fuller fruition from this moment forward. Be like the little girl who had a very bad cough and a sore throat. She declared firmly and repeatedly, "It is passing away now. It is passing away now. It passed away in about an hour." Use this technique with complete simplicity and naivete. सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ टेलिंग, है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो गॉड बैठे हुए हैं, वो पावर हैं जो फिक्स कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बस कि कामली आप थिंक करो कि आपकी वो चीज ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, और फुल ऑफ फ्यूशन में वो चीज हो चुकी है फ्रॉम दिस मोमेंट फॉरवर्ड। फिर आगे बताते हैं, बी लाइक अ लिटिल गर्ल। सो गाइज आउट देयर, यू डोंट हैव टू बी लाइक अ लिटिल गर्ल, बी लाइक अ लिटिल गाय। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी थोड़े से वो रहे। So be like that child in you, and as if बहुत बैड कफ जिसको है और बहुत ही सोर थ्रोट है, गले में दर्द हो रहा है, तो वो जो चाइल्ड है वो डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को लगातार, जो हमारे अंदर गॉड है ना, दैट्स हीलिंग, दैट्स फिक्सिंग अस एंड सेइंग इट इज पासिंग अवे नाउ। क्या कॉफ, कॉफ जो आपका था या गले में दर्द हो रहा है, आप लगातार अगर अपने आप को ये बोलते हो आंख बंद करके, it is passing away now, it is passing away now, it is passing away now, it passed away in about an hour, है ना। और use this technique with complete simplicity and naivete, as if आपको, आप सबकॉन्शियस माइंड पे सब सरेंडर कर रहे हो और आप देख रहे हो कि इट इज जस्ट पासिंग अवे, आई कैन सी दैट इट इज पासिंग अवे, आई कैन सी दैट इट इज पासिंग अवे, इट्स पासिंग अवे नाउ। तो ऐसे कर करके घंटे के अंदर आपका कफ कोल्ड, जिसके लिए आप डॉक्टरों के पास भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, है ना, वो ठीक हो गया। तो ये बता रहे हैं कि पासिंग ओवर टेक्निक, इस टेक्निक का नाम है। तो हम अलग अलग टेक्निक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ये है पासिंग ओवर टेक्निक। कोई भी फेज आपका लाइफ का अभी चल रहा हो जो बहुत प्लेजेंट नहीं है, मे बी, ओके, तो आपको यही बोलना है, ओ दिस फेस इज पासिंग अवे नाउ एंड आई एम सो हैप्पी, everybody in my family is so happy because that phase has passed away. ओके, दिस इज वॉट। अगर आप लोगों से बात करोगे, अरे ये हो गया, ऐसे कर गया, ऐसे कर गया, इट इज ऑपोजिट टू पासिंग ओवर टेक्निक, जस्ट रिमेंबर। हाँ जी। Your subconscious will accept your blueprint. If you were building a new home for yourself and family, you know that you would be intensely interested in regard to the blueprint for your home. You would see to it that the builders conformed to the blueprint. You would watch the material and select only the best wood, steel, in fact, the best of everything.
What about your mental home and your mental blueprint for happiness and abundance? All your experiences and everything that enters your life depend upon the nature of the mental building blocks which you use in the construction of your mental home. If your blueprint is full of mental patterns of fear, worry, anxiety, or lack, and if you are despondent, doubtful, and cynical, then the texture of the mental material you are weaving into your mind will come forth as more toil, care, tension, anxiety, and limitation of all kinds. The most fundamental and the most far reaching activity in life is that which you build into your mentality every waking hour. Your word is silent and invisible. Nevertheless, it is real. You are building your mental home all the time, and your thought and mental imagery represent your blueprint. Hour by hour, moment by moment, you can build radiant health, success, and happiness by thoughts you think, the ideas which you harbor, the beliefs that you accept, and the scenes that you rehearse in the hidden studio of your mind. This stately mansion upon the construction of which you are perpetually engaged is your personality, your identity in this plane, your whole life story on this earth. Get a new blueprint. Build silently by realizing peace, harmony, joy, and goodwill in the present moment. By dwelling upon these things and claiming them, your subconscious will accept your blueprint and bring all these things to pass. By their fruits ye shall know them. Yeah. Thank you, Anu, for reading so Thank you, beautifully. ma'am. I hope you've read enough to your heart's Yes, content. yes, ma'am. Thank you, thank you. Thank you so much. Your voice has magic. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you. सो मेक अ मेंटल ब्लूप्रिंट का मतलब होता है फाइनल प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट क्या होता है वही जो मैं बता रही थी है ना जैसे मेरा बेटा जब आर्किटेक्चर में वो बना ही इज एन आर्किटेक्ट राइट सो ही मेक्स अ ब्लूप्रिंट और वो हमको फाइनल प्रोडक्ट बनाता है कि दिस इज हाउ दिस बिल्डिंग इज गोइंग टू लुक लाइक जब ये पूरी तरह से बन जाएगी तो हमको एग्जैक्टली पता होता है कि मेन डोर कहाँ पर है वहां पे सपोज उसने मॉल बनाई है तो मॉल में मेन डोर कहाँ पर है कितने स्टोर्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे अंदर से कितने स्टेयरवेल जा रहे हैं तो पूरा आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया है तो दैट पिक्चर ऑल्सो मूव्स वॉट एवर यू गाइज कॉल इट यू नो मुझे वो नहीं पता बट ब्लू प्रिंट इज नॉट जस्ट इट्स लाइक 3D 4D मूविंग पिक्चर इतने अच्छे से दिखती है पूरा टूर होता है उस बिल्डिंग का पहले ही इवन बिफोर यू हैव मेड इट इतना कॉन्क्रीट तो ये ब्लूप्रिंट टेक्निक है पहले वाली कौन सी थी पासिंग अवे टेक्निक जो हमने की थी जिसमें हम अपनी बीमारी या अपने उस फेस को बोल रहे थे इट इज पासिंग अवे नाउ इट इज पासिंग अवे नाउ इन स्लीपी ड्राउजी स्टेट अच्छे से करके है ना और वो 1 घंटे में वो चीज चली गई तो पासिंग अवे टेक्निक थी वो फेस चला जाता है और ये वाली है ब्लूप्रिंट टेक्निक ब्लूप्रिंट मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है ये आपको पता होना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट का मतलब होता है अगर आपका कोई हेल्थ गोल है तो फाइनल हेल्थ गोल क्या है कितना आपका ब्लड शुगर लेवल है कितना आपका थायराइड लेवल है आपकी बॉडी में कैसी एनर्जी स्ट्रेंथ आपको दिख रही है बिल्कुल परफेक्टली आपको पता होना चाहिए कि ये उसकी इमेज कैसी होती है ओके जैसे मैंने वो स्किप कर दिया था थोड़ा सा उसमें चैप्टर 13 में जब हम पढ़ रहे थे अभी मैजिक बुक में कि विजन बोर्ड बनाना क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड विजन्स पे चलता है ना मतलब इमेजेस पे चलता है इमेजेस तो इमेज होना बहुत जरूरी है ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है इमेज होना है ना तो वो इमेज आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आप कैसे दिख रहे हो क्या कर रहे हो कहाँ जा रहे हो अगर आपका कोई ट्रैवल गोल है सपोज आपको आपको पौंडीचेरी जाना है तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर ट्रैवल गोल में आजकल तो बहुत आसान है कि आप वर्चुअल टूर ले लो या पौंडीचेरी के इमेजेस देखो या आप वीडियोस देखो व्हाट आर द प्लेसेस टू सी इन पौंडीचेरी सो यू नो वेरी क्लियरली दैट अच्छा
लाइक इस तरह से सारा वो होता है। पौंडीचेरी में ऑरोविल है, ऑरोविल का कैसा पूरा एम्बियंस है, कौन सा वो मेडिटेशन सेंटर है, ये सारी चीजें, बीचेस कैसे दिखते हैं, जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं वहां पे उनके कितने ब्राइट कलर्स होते हैं, है ना। तो वो उनके बीच में आप स्ट्रीट्स में आप जा जाके वहां पे थोड़े से बीचेस, ऑरोविल बीच इज मोर सैंडी वेर इज ऑल दी अदर प्रोमेनाड वाला जो एरिया है दैट्स मोर रॉकी। तो ये आपको सारा पहले से ही, तो आपको ब्लूप्रिंट में बहुत क्लियर है कि वो रॉकी बीच पे प्रोमेनाड जो है होता है, जो वॉक होता है कंक्रीट, हर बीच के शोर पे एक कंक्रीट जगह भी बनी हुई होती है, वो कैसा दिख रहा है। आप वहां पर हो तो आपको क्लियर ब्लूप्रिंट है दैट आप क्या क्या आपने पहन रखा है, आप किन के साथ हो, आप क्या क्या कर रहे हो, वहां पे फूड एंजॉय कर रहे हो, कौन सी जगह पे जा रहे हो, पानी में स्टेप करो अंदर, है ना, फील उसका गीलापन, तो वो सब कुछ आपको बहुत एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उसको ब्लूप्रिंट मेथड बोलते हैं, दैट बी क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, है ना, बहुत क्लैरिटी के साथ। सो दैट्स अ ब्लूप्रिंट मेथड। तो या आज दो ही मेथड करेंगे, फिर कल हम करेंगे द साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रू प्रेयर, जिसमें वो हमको बताएंगे किस तरह से हमको करना चाहिए। एंड साइंटिफिक है, आप देखो, है ना, इजंट इट, मतलब इट्स द साइंस ऑफ प्रेयर इट इज नॉट सम स्पिरिचुअलिटी कहाँ से कमिंग आउट ऑफ थिन एयर, एवरीथिंग इज। मैं तो बिना साइंटिफिक रीजन के कुछ कर ही नहीं पाती, मैं तो दिमाग ही ऐसे ही वायर्ड है शुरू से। सो मैंने बहुत टाइम लगाया मुझे स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ लिंक करते हुए, और फिर दोनों को डेवलप किया, और फिर दोनों को अमेलगमेट करके अब पता लगता है अच्छा ये तो साइंस है, ये तो मेजर कर सकते हैं, ये तो ऐसा होता है, अच्छा इसके तो यूनिट्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के। अगर मैंने 3 बार बोला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो मैं अपनी पहले और बाद की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखूंगी कि मैंने शब्दों का चूज किया, शब्दों का चयन किया, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आया, और वो मशीन 1 सेकंड में मुझे बता देगी कि आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी है ना, इस तरह से कि अभी आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, 3 बार आई लव यू बोलने के पहले आपकी इतनी फ्रीक्वेंसी थी। बिकॉज एनर्जी को तो बहुत आराम से मेजर कर सकते हैं, बहुत मशीनें, बहुत टूल्स हैं आजकल, है ना, ऑरा डिटेक्टर्स इतने सारे होते हैं आजकल। सो अलग अलग तरीके से तो सब कुछ ही साइंस है, ये कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी साइंस होती है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? अपने स्पिरिट से कनेक्ट करना, कनेक्टिंग टू द हायर पावर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। कनेक्टिंग टू दैट हायर पावर विद इन अस, है ना, इज सो मेजरेबल। सो वो अपने आप साइंस बन जाता है। सो हमारे हर एक सेल में पता है ना हमको, अभी इंटेलिजेंस है, गॉड अंदर ही है, अभी बैठे हुए हैं, पता भी नहीं है, पता नहीं आराम से दिल धड़क रहा है, ऑक्सीजन पता नहीं कैसे अंदर जा रही है, कॉन्शियसली तो हमने सांस ली नहीं है ना, सब अनकॉन्शियसली चल रहा है, ऑटोमेटेड चीजें चल रही हैं ऑटो पायलट पे। तो वो सांस अंदर जा रही है लंग से, फिर वो हार्ट के पास जा रही है, हार्ट बीट करके उसको नीचे पंप कर रहा है, ऊपर की तरफ थ्रस्ट कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट पूरे सिर की तरफ, आंखों की तरफ, सारे नर्व्स को अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच रही है, सारा काम चल रहा है, जबकि हमारा तो ध्यान ही नहीं है उसमें। अगर हमने कुछ चाय पिया है, पानी पिया है, उसका डाइजेशन चल रहा है, यूरिन बन रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में लगातार यूरिन आता जा रहा है ना, ये सारे काम हो रहे हैं, पेरिस्टालिसिस चल रहा है हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, ब्रेन हमारे हॉर्मोन्स को ऊपर नीचे कर रहा है, क्योंकि आपको मेरी आवाज आ रही है, वो हॉर्मोन्स की वजह से ही आप कैच कर पा रहे हो, है ना, मेटाबॉलिज्म की सारी चीजें चल रही है, और सब कैप्चर कर रहे हैं, दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, माइंड इंटरप्रीट कर रहा है इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ इमेजेस भी देता जा रहा है, ये सारी चीजें ऑटो पायलट पे चल रही है। कौन कर रहा है? ये गॉड अंदर जो है वही कर रहे हैं, है ना। सो गॉड तो अंदर है, तो ये सारी चीजें जो होती है इसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तो ये साइंस है ना, लेकिन हमको ये पता है कि ये भगवान है जो कर रहे हैं। सो इसीलिए एवरीथिंग इज साइंस एंड दैट विल डू टुमारो।